بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر خارش سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کرے۔ ہری سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کالے زیرے کو کچل کر پھر گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی سستی اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینا جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب ہی کھانا کھاؤ، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ گلے کے درد کے لیے گرم دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ گرمیوں میں مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے اور بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیئے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ نہار بال کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر شور کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس بھی پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دونوں دور ہو جائیں گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔
अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमजोर होने लगे तो लौंग वाला पानी पी लीजिए, जिस्मानी ताकत इससे वापस आ जाएगी। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के अमराज का यह शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा हो जाती है। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने के 3 फायदे हैं। मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है, ज़हनी सलाहियत में इजाफा हो जाता है और दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। नाक में वैसलीन लगाकर सोने से बदन बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया करो। पलकों को घना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अर्के गुलाब लगाकर सो जाया करो। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। काले होंठों पर दही की बलाई लगाकर सो जाओ, सुबह होंठ लाल होंगे। जंग वाली जगह पर कपड़ों वाला डील डाल देने से जंग उतर जाएगा। हरी सब्जी खाने से जवानी रहती है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी जाओ, दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी। बालों को बांध कर रखो, दिमाग तेज हो जाएगा। रोजाना नहाया करो, खारिश का मसका कभी नहीं होता। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी बवासीर के मरीज ठीक हो जाते हैं। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी रहती है। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तेजाबियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फ्रूट चाट खा लेने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। धनिया और सौंफ पीसकर चुटकी भर फांक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ज़ेरे नाव बालों पर नींबू लगाकर साफ करने से बाल आसानी से उतर जाएंगे। हमेशा कम मसाले और मिर्चें इस्तेमाल करें, जिंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक को चबाकर देखना, आप फौरन ठीक हो जाओगे। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है और इंसान की भूख को खत्म कर देती है। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो कद्दू खाया करो। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। छींक रोकने से दिमाग कमजोर होता है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। अगर बुढ़ापे में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लो और शाम के वक्त पी लिया करो। नींबू का छिलका चेहरे पर रगड़ लेने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। रोटी को दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी बढ़ने लगता है। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। जो इंसान ज़ईफ हो जाए या बहुत कमजोर हो जाए, उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाने से उसमें ताकत आ जाती है। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और इशा के वक्त पानी के साथ निगल लें।
इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, जो लोग ये समझते हैं कि खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाएगा, तो ये सरासर एक गलत तस्वुर है। कोल्ड ड्रिंक आपको कभी भी फायदा नहीं दे सकती। खाने के बाद पानी मत पिया करें ताकि आप देर तक जवान रहें। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ और 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ये अमल जरूर करो। खट्टी चीजें बदन को दुबला करती हैं और पट्टों के लिए बुज़र साबित होती हैं। अगर वजन ज्यादा बढ़ जाए तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी जाएं। दांत का शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जुए लेकर अच्छी तरह कूटकर उन्हें दांतों पर मलें। इंशाअल्लाह दर्द मिनटों में खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो, कब्ज जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। जिस्मानी थकावट हो तो रात को सोने से पहले बदन पर सरसों के तेल से मालिश करें। मर्द की मर्दानगी में कमी आने लगे तो लौंग का पानी पिए, इससे उसको बहुत फायदा होगा। दरख्त अगर फल न दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डाल देने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। उसके लिए सौंफ का कहवा बनाकर पी ले, उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा शामिल कर ले। शाम 4 बजे यह कहवा रोजाना पिए, आपकी हड्डियां और जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे और बार बार पेशाब आने का मसला भी खत्म हो जाएगा। और बूढ़े लोग इसे ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करें। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। जो औरतें बांझपन की बीमारी से बचना चाहती हैं वो चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल मत किया करें। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। शुगर के मरीजों के लिए करेले का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। फोड़े पिंसी के लिए देसी मुर्गी के अंडे की सफेदी में 1 चम्मच तिल का तेल मिलाएं और फोड़े या फिंसी की जगह पर लेप कर दें, इससे बहुत फायदा होगा। नजर की कमजोरी को दूर करने के लिए गाजर और अजवाइन का जूस पिया करें। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो फिर बाकायदगी से बादाम खाया करें। सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करो। खून की कमी के मरीज को अनार खिलाओ। कमजोर हड्डियों में मुब्तला अफराद को केले खिलाओ। कलवंजी का पाउडर बनाकर उसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयां खत्म हो जाती हैं। नाश्ते में शहद का इस्तेमाल करने से जिस्म में खून की पैदाइश होना शुरू हो जाती है और खून की सफाई होती है। जो रोजाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं वो जल्दी बीमारी का शिकार नहीं होते। चाय, कॉफी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक पीने से दूर रहें, इससे मसाने में तकलीफ हो सकती है। नाज़रीन, अगर आपका वजन बढ़ गया है तो कद्दू का जूस पिया करो, इससे वजन बहुत जल्दी कम होने लगता है। दालचीनी के रोजाना इस्तेमाल से याददाश्त बेहतर हो जाती है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से जहानत में बहुत इजाफा हो जाता है। जैतून के तेल को सुरमे की तरह आंखों में लगाने से चमक आ जाती है। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर जीरा डालकर खा लिया करे। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकालकर पी लें, इससे जिस्म के दाने खत्म हो जाएंगे। जिस घर में नीम का दरख्त मौजूद होता है उस घर में बीमारियां नहीं आती। मीठी और गर्म चीजें
खाने के बाद पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। नींबू का रस चूस दिया करो, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है और हल्दी वाला दूध पेट की सफाई कर देता है। रात के वक्त केले का इस्तेमाल मत किया करें, इससे सीने में बलगम पैदा हो जाती है। गन्ने का रस पीने से पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। गर्मी दूर भगाने के लिए गन्ने का रस फायदेमंद समझा जाता है। कैंसर के मरीज को आम का फल इस्तेमाल करवाओ। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे के लिए बहुत मुफीद है। ठंडा पानी पीने से बचा करो, इससे चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। रोजाना मिसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। गन्ने का रस पीने से या वैसे ही गन्ना चूसने से पथरी कम होने लगेगी। अगर कोई शख्स खांसी या बुखार में मुब्तला हो तो वो रात को सोने से पहले सरसों का तेल उंगली पर लगाकर अपनी नाक में लगा ले। इंशाअल्लाह इससे फौरी आराम आ जाएगा। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मसल दो, वो दाग उतर जाएगा। जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो जाए तो वो सौंफ वाला पानी पिया करें। इस पानी के रोजाना इस्तेमाल से आपको बहुत फायदा होगा। पानी में नमक डालकर सूती कपड़ों से उसे चेहरे पर मलें। तकरीबन 1 हफ्ते के बाकायदा इस्तेमाल से चेहरे के बाल खत्म हो जाएंगे। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से थकावट हमेशा दूर रहेगी। सफेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे। नाजरीन, जब हमें छींक आती है तो 1 सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। मीठी चीज खाने के फौरी बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दांत खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को गले के टालसेस हो, गले में दर्द रहता हो, तो वो शहतूत खाएं, और अगर शहतूत मुहैया न हो तो शरबत तूत सियाह का इस्तेमाल करें, और यह गले की खांसी को भी ठीक करता है। खाने के बाद 1 दाना खजूर का खा लिया करो, आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। रात का खाना देर से खाने से मैदे में गड़बड़ हो सकती है। जिनको शुगर का मर्ज हो वो करेले का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें। बदन कमजोर नहीं होता और जवान नजर आता है। हफ्ते में 1 रोजा जरूर रख लिया करो, इससे निजामी इंतजाम भी बेहतरीन रहेगा और आपको कभी भी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। जिसके सर में दर्द हो उसको चाहिए कि कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रखकर तिलावत करे, इंशाअल्लाह शफा मिलेगी। बावर्ची खाने में खिड़कियों दरवाजों में अगर चिमटियां हो जाएं तो नींबू का रस निचोड़ दे तो इससे चिमटियां भाग जाएंगी। नाजरीन, आसान सा टोटका गिरते हुए बालों के लिए 1 अंडा और 1 चम्मच पाउडर तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। 3 घंटों के बाद सर को धो लें। हफ्ते में 1 बार करें, चंद दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। रोजाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाया करो। मौसम बदलने का बुरा असर आपकी सेहत पर नहीं पड़ेगा। बदन में खारिश हो या दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी से गुस्ल कर लें। जिस्म के दर्द और खारिश का ये एक बेहतरीन इलाज है। जिन मरीजों को मैदे का मसला हो या मैदा कमजोर हो गया हो, सुबह नाश्ते में 1 पाव जामुन खाने से मैदा मजबूत होगा
اور غذا جلدی ہضم ہوگی۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ۔ بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو۔ اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست اور کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ حافظہ اور نظر کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے اور بدن کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے تو رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اسے چھلکوں سمیت کھا لیں۔